So good day, folks. It's fifth Charan over. Battle more or less won and sealed. The first four Charans did fairly well for the Samajwadi Party, if not decisively. The Conservative people say 160 seats out of the 271. The more, a lot of the people are actually saying 200 of those have gone to Samajwadi Party and Ralda, right? Now, the fifth Charan, Ayodhya, which is basically, as they say, the experimenting Yogshala of the BJP, where Modi and Shah especially had worked so hard to get the Pichdi Jatis under this white Hindu umbrella. Before they obviously, that white umbrella failed, and that Pichdi Jati is now all over the place, right? They're having a problem. Here it's all about this Pichdi Jati, and almost every seat seems to be in trouble. But so what does it say? Mandal Kamandal in play as UP votes in round 5 today. BJP seeks to maintain Ayodhya advantage with a total seat 61, SC/ST seats 13, total candidates 69, 693, women candidates 90, voters 2.2 crore. And this is what is the point. Sluggish turnout again in UP phase 5, clocks 56 PM to camp in Varanasi for 3 days. That's not helping, it's actually having a negative impact, and it shows the panic all over the place. The other bigger issue was having ripped Yogi away from Ayodhya and moved him to Gorakhpur, then in Gorakhpur taking him off the main posters and putting only Modi. That's reverberating in the region negatively. What do you have here? UP records 56% turnout in phase 5, and Shah carries on with the same BS, right? Shah SP government provided power on Muharram, not on Ramnam. You know, which records do you have for lies? Shah actually is a Gujarati liar, right? Maybe all Gujaratis are liars? I don't know. People have decided to send Babaji back to his mutt, says SP. Even electricity had cast religion before 2017, says Yogi. I mean, he's a smart guy. He's got artificial intelligence running around on his bulldozer, and you got these really smart setups in Uttar Pradesh where electricity flows based on caste. I mean, fuck, there is no electricity, Mr. Yogi. Not in Akhilesh's time, it improved. In your time, there's none. 44 of 75 districts certified free of stray cattle, says UP government. I mean, just by saying it doesn't mean it's happening. There are a bunch of idiots, I think, in UP. 8 years later, defunct bundis of a rupees 7.2 crore Bundelkhand package, and that's what everything in UP is all about. Raped by the bureaucrats. Polls a contest between diners, nationalists, says PM. What do you mean nationalist, man? I can't understand. He's going to explain us what nationalism means. BJP's Varanasi War Room Guides campaign provides alert. It's providing alert. Oh, we are losing them. Oh, we are losing them. That's all they can do. This is all their armchair, computer-based analysts, right? And this takes the cake. Even if earning rupees 50,000 people want government jobs and get registered, so unemployment numbers go up. Does Mr. Nada know that he can't even tie his dhoti for 50,000 rupees a year? Does he know that? And he says 50,000 rupees a year, people should not be applying for government jobs. Is he for real? This is what they want to get us all to, right? In landslide victory, BJD set to bag 90% of panchayat seats. Done and dusted, BJP. Done and dusted. था बीजेपी के साथ, उसको बड़ा भरोसा था बीजेपी पे कि बीजेपी आएगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी। लेकिन इस बार में बीजेपी के जो वादे थे, किसी वादे पे बीजेपी खरी नहीं उतरी। किसी वादे पे खरी नहीं उतरी। जैसे कि मान लीजिए एसपी सरकार थी, जो लोगों का रुझान एसपी के लिए इसलिए है कि एसपी ने जैसे कि एम्बुलेंस 108 सेवा चलाई, किसी जात विशेष के लिए नहीं चलाई। उसने सबके लिए 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई, सभी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो प्रधान जी आपका मानना ये है कि दलितों में भी 80% दलित इस बार समाजवादी पार्टी? हाँ, यस, हाँ, समाजवादी सरकार को देंगे। क्या नाम है आपका? हमार बुधाई। बुधाई? थोड़ा तेज बोले बुधाई भाई। हाँ, बताओ। चुनाव है, हाँ। माहौल का है? माहौल बढ़िया है। क्या समस्या क्या है गांव में? समस्या का है, समस्या साइकिल वाली चुनाव हो चाहिए, और मोदी वाले को सब हमारे देश चरे लिए थे। मोदी देश चल लिए थे? देश मोदी ने चरे लिया था, और को चरे लिया थे? मोदी ने क्यों चल लिया था देश को? चल लिया, मोदी नहीं चल रही, योगी चल रही। हमारा पूरा ख्यात देख लो, चले रात दिन पड़े रही थी और सब चले लिए थे। नाम आपने क्या बताया था अपना? हमारा नाम बुधाई है। बुधाई पूरा नाम क्या है? हाँ, बुधाई। कौन सी जाति में आप? हम रावतान। मतलब आप दलित जाति में आते हैं? हाँ। तो दलित भैया मेरे भाई प्लीज शांत रहिए। तो आपके संगी साथी जो दलित जाति के लोग हैं, हाँ। वो पिछली बार मायावती के साथ थे, बीजेपी के साथ थे पिछली बार? हम बीजेपी के साथ है रही। और अब क्या हो गया? अब क्या होगा? बीजेपी हमारे जब रोटी नहीं खाए लिए थी, हमारे हाथ क्या जब बोई जो जितना पैसा लगाए थे सब खाए लिए थे मोदी कहते हैं कि हमने तो भाइयों और बहनों आपको 5 किलो राशन दे दिया। 5 किलो राशन में क्या हो जाए? 5 किलो राशन में क्या होई? अरे बुद्धि भाई 2000 रुपए भी तो दिए। 2000 हमका कहाँ दीने? ना है, नहीं दीने। मकान तो आया हो? मकान है, घर है,
हमारे पास खेती नहीं तो काग दे दिया है हमका। अच्छा मकान तो योगी ने दिया। मकान का दीन हमका कौन है कोई दीन दिया ना दिया मकान नहीं दीन शौचालय दिए शौचालय नहीं दीन मोदी अबे कुछ ना दिया आपको कुछ नहीं दीन। अच्छा गैस का सिलेंडर तो दिया ही होगा। गैस का सिलेंडर दे दिन का खा ली। हाँ So if you can see the videos up and down, this is all these interviews being conducted by Deepak Sharma and Anjum, and you get the immediate feeling, and what Sabha Naqvi had said in one of my interviews yesterday, that the Parsi vote, which was earlier fully in the bag of the BJP, is suddenly moved. Now, whichever Parsi you speak to, and we have this other lady who went out to the Parsi women and the Dalits, so all of them seem to be now defying all odds, sitting on the cycle. So what do we have here? One BJP banks on Yogi to deliver Gorakhpur. Now pray, how is he going to deliver Gorakhpur? when the posters that were put up in Gorakhpur, where he's fighting, were only of Modi, and they took him off, and he was running around plastering his guys from the Yuvavani. It ain't happening. But Gorakhpur in serious trouble, folks. मेट्रो देंगे, युवा को नौकरी देंगे और भी विकास बता रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री बता रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जानवर यहीं पे अभी देख लीजिए, दिखा दें आज जोत के आए खेत। लेकिन ये सब बात तो कांग्रेस भी कर रही है, तो कांग्रेस को काहे नहीं वोट? कांग्रेस तो सत्य में है ही नहीं। टक्कर इनकी भाजपा की और सपा की चल रही है। कांग्रेस और बसपा एकदम जीरो। आपका क्या नाम है? रूपचंद। योगी जी का विकास है, लेकिन कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। टीवी चैनल पर और पेपर में, बाकी धरती पर विकास कोई नहीं। खाली पेपर देख लो योगी जी का विकास, टीवी देख लो योगी जी का विकास, बाकी कोई विकास नहीं। अच्छा, जो गौशालाएं बनाई है सरकार ने पैसा देके, वो कैसे काम करेंगे? यहाँ कोई गौशाला नहीं। गौशाला में कुछ नहीं है। हाँ वही बात, वही गौशाला कुछ नहीं है। गौशाला 3 गिरी पड़ी है, उनमें कोई जानवर है नहीं, कर्मचारी को है नहीं। क्यों? साफ है। तो गौशाला तो ग्राम पंचायत चलाती है। बाबूजी भ्रष्ट है, कर्मचारी खा जाते हैं, चारा लगाना। अभी लेके जाओ गौशाला, अभी बंद कराओ, सुबह दो खाली जानवर। ये कहते हैं मैंने ये शासन लगा दिया, कहीं बहन बेटियां आराम से घूमें, ये करें वो करें, सब झूठ। कैसे? कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कोई अपराध नहीं बढ़ा, घटा नहीं अपराध, कोई घटा नहीं अपराध, जैसे चल रहा है वैसे है। करें गुंडाई बुलडोजर चला रहा है से बाबूजी कुछ नहीं क्या है? बुलडोजर वाले बाबा हैं और क्या है? एक मिनट, बुलडोजर वाले बाबा के तो कह रहे हैं कि बुलडोजर अपना रिपेयर पर दे दिए हैं, फिर 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलाएंगे। बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गोरखपुर। कहे घंटा बजाएंगे मंदिर में, गोरखनाथ बाबा मंदिर नहीं है, वहीं पूजा करेंगे। तो सरकार कौन चलाएगा? क्या सरकार अखिलेश चलाएंगे? अब की सरकार अखिलेश चलाएंगे, बाबा जी घंटा बजाएंगे। जो कहते हैं इसका क्या नाम किया, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, ये झूठ है। राम को तो कौशल्या माता हमने दशरथ जी लाए थे, और फिर इनकी 14 साल जाए गांजा पिए, 14 साल बाद बनवास दे रहे, उसके बाद आएंगे। अब अखिलेश भैया आएंगे बाबूजी। अब 10 मार्च को क्या करते हैं आप? आप करते क्या है? हम क्लिनिक पर रहते हैं। कहाँ क्लिनिक? आप लोग को राशन वाशन मिलता है? हाँ मिलता है, कुछ कटा रहा था, कुछ मिलता है, भाई से बात नहीं ना है। 10 लोग 5 लोग को मिला, 5 लोग को मिला, हिंद रहा लफड़ा। अखिलेश यादव भी तो सिराथू आए थे शायद। हाँ जरूर आए थे। शायद सिराथू भी उनकी सभा हुई थी 2 दिन पहले प्रयागराज में थे अखिलेश यादव। परसों ही रोड शो, बहुत भीड़ भाड़ वाली प्रयागराज में, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि सड़क पूरा जाम था। सिराथू इलाके में भी थे शायद, लेकिन सिराथू इसलिए इस बार जिक्र बार बार हो रहा है। 2012 में केशव मौर्य सिराथू से जीते थे, पहली बार विधानसभा चुनाव सिराथू से जीते, और उसके बाद 2014 में लोकसभा के सदस्य बन गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। तब जो उपचुनाव हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई उस सीट पर, लेकिन फिर 2017 में बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा किया। 25-26 हज़ार से बीजेपी 2017 में जीती। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, एमएलसी बने, ताकि 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है। लेकिन इस बार केशव मौर्य चुनाव मैदान में। अभी सिराथू आए थे, किसी गांव में उनका विरोध भी हुआ था शायद, है गांव में किसी से मिलने गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जरूर कुछ रहा है, आपको मालूम नहीं? एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी के घर गए थे मिलने, लोग नाराज थे। अब वो लगातार आ रहे हैं। तो भाई ये कहा जा रहा है, क्या नाम भूल गए, कामता प्रसाद जी। केशव मौर्य कह रहे हैं हम तो इस इलाके के बेटे हैं, पल्लवी पटेल तो इस इलाके की बहू है, उनके ससुराल है पल्लवी पटेल किया, तो बेटा बहू मुकाबला है, तो बेटा को लोग ज्यादा चुन लेगा हो सकता है। नहीं जी, पल्लवी पटेल जाएगी, वो जीत जाएगी बढ़िया आराम से, वो जीतेगी, पल्लवी पटेल जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? चलो ये समझाओ जरा। ऐसा क्यों नहीं? लहर है तो लहर है, कोई चीज़ गंगा का बाढ़ होती है, जाएगा नहीं 5 साल में 10 साल में, सब दुनिया के तूफान करे ना। हाँ इसलिए सब पलट रही है, पलट रही है। हाँ सब पलटा मार रखे हर जगह, तो ये यही पलटा मार रही है। So flavor of some of the seats, right? One is much talked about Sirathu, where Keshav Maurya, the stool mantri, is pitted against a very clever choice, Pallavi Patel. Pallavi Patel's mother, Krishna Patel, is
Anupriya Patel's mother, and Pallavi is the sister. This is in Sirathu. And Sirathu, the Samikaran is very clearly biased against, it's like Patels, Pasis, Yadavs, Muslims. So figure, Patel, Yadav, Muslims are going towards Pallavi Patel. Pasi, as I've already told you, is 40 to 50% shifting to the Samajwadi Party. Hence, it just seems to be, it's going to be a walkover for Pallavi Patel. Then you have Kunda. Kunda is where Raja Bhaiya. Lots of news yesterday about violence and firing. That can only happen if he's in trouble. And he's won 3 times decisively running, right? He's been pitted against his own junior, a guy called Rajbhar Yadav, giving him a tough fight. Chitrakoot to Ayodhya is considered to be the Paryag-shala of Hinduism and of this whole process. Everywhere in trouble, right? Ayodhya is the funniest seat of them all, which the BJP might lose. And if it loses, it's in trouble. Because till now, Gupta, who was the sitting MLA, thought that he had nothing to do because Yogi was fighting. And all of a sudden, Yogi was pulled out. He was sent to Gorakhpur and Gupta had to fight. Now, there is a Dabang Pandey, which I am told the story. Previously, when he was doing Prachar, people used to just throw his slip that he was spreading around. This time, apparently, when he was campaigning, there were Pandits and Brahmins and everybody calling him inside for tea. Go figure that out, right? Brahmins are extremely unhappy. Then there's a street called Milkipur and Gosaiganj, which looks decisively going towards the BJP, you know. And I know very little about this stuff. Prayagraj, stuck. Allahabad, Siddharth Nath Singh, stuck because Richa Singh is giving him a tough fight. Richa Singh is giving a tough fight because he's a Dabang student leader. And after all the lathi charges that happened there, big problem for them, right? Amethi, strange decision. Sanjay Singh against, and his wife, his first wife who he dumped. The dumped wife is supporting Samajwadi Party. Goodbye, Sanjay Singh. And this is a Trikoni one because here apparently even the Congress has come back in full power. So it's and Barach, all of it seems is in trouble because this is the area bordering Nepal, and here it's huge amounts of Muslim. The Jati current is totally within Samajwadi Party's liking, and this looks like history for them. And what we are seeing here, basically, whether it's Daryabad, whether it is Barabanki, there is just all the interviews you're having. It's a locomotive that's going to hit the BJP really, really hard with some really surprise results. Jai Hind. हमने जिस चैनल ने 5 साल उत्तर प्रदेश में जितने भी जुल्म अत्याचार हुए उस हर मुद्दे को उठाया, तो मैं आपके सामने बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जितने घोटाले हुए हैं, जितने यहाँ कमिश्नर डीएम ने बेईमानी की है, अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनों को नियम कानून को ताक पर रखकर लिखाया है, इन सब की जांच कराएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने गलत तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, जब बात हुई थी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो डर तो गए थे, पवन पांडे हवाएं तोड़ गई थी आपकी। भागा कौन मैदान छोड़ के? अगर हम डर गए होते तो हम भाग जाते अयोध्या छोड़ के। हम कह देते हम नहीं लड़ेंगे, हम तो भागे नहीं, हम तो डटे पड़े अयोध्या में। अखिलेश यादव, पवन पांडे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड नारेबाजी करिएगा। एक बात बताइए, गए क्यों योगी जी, क्यों नहीं लड़े, आपको क्या जानकारी है? अब जैसा उनके दल के नेता बताते हैं, हमारा तो बहुत संबंध इन लोगों से है नहीं, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आती है समाज में, क्षेत्र में या बाजार दुकानों पे लोग चर्चा करते हैं, तो लोग यही बताते हैं कि शायद कोई सर्वे वर्वे कराए थे। तो सर्वे में निकल के आया कि जो 5 साल यहाँ की जनता ठगी गई, मारी गई, लूटी गई, जनता को इनके साथ नहीं खड़ी हो रही थी, और कुछ सर्वे में माया जनता हरा देगी, इसलिए भाग गए। मतलब आपका कहना मतलब है इतना सारा काम किया योगी आदित्यनाथ जी, पूरी दुनिया में राम मंदिर की बात कहते हैं, और आप कह रहे हैं सर्वे में वो उनका नंबर नहीं। हम बता दें आपको, इस समय जो 2 अयोध्या दिखाई जा रही है, एक अयोध्या जहाँ आप खड़े हैं इस जमीन पे है, आप अपन कैमरा लेके चलो, हम पूरी अयोध्या को टहलाएंगे। अगर आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 5 सालों में कहीं कोई काम नहीं, ठगी, लूट, छल करने के अलावा कुछ नहीं किया। और दूसरी अयोध्या है योगी और नरेंद्र मोदी की, वो विज्ञापन में है, वो टीवी चैनलों में है। जितना विज्ञापन दिया पैसा, मतलब सरकारी पैसा, जितना हमारे खून पसीने का जो टैक्स है, उस टैक्स को जितना नरेंद्र मोदी और योगी ने दिया, ये गोदी मीडिया ये आपराधिक छवि के बहुत लोग लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमको जो लगता है वो सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, और कोर्ट ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया सजा याफ्ता का। तो उसके बाद हमें लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो। लोग कह रहे हैं आप भी ठाकुर हैं और योगी जी के जितने संगी साथी माफिया ठाकुर हैं, उनके प्रति योगी जी का दिल थोड़ा हिलू हिलू करता रहता है। भाई हम तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनके साथ हैं, उन्हीं साथ रहेंगे। गाँव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़े जो है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना उनको कोई दवा इलाज हो पा रहा है। बेचारे गरीब आदमी लखनऊ जा रहे हैं यहाँ से रेफर होकर के, ना मेडिकल कॉलेज भर्ती हो सकते हैं, ना लोहिया भर्ती लेता है, ना पीजीआई भर्ती लेता है, वो तरह के मर जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए नेता नहीं है, हम इनके भाई और बेटे हैं। अगर इनके यहाँ कोई दुख और सुख पड़ता है तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, उनके रिश्तेदार नहीं पहुँच पाते, उनके दरवाजे में वहाँ मौजूद रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क।
मैं खड़ा हूं अयोध्या के गोसाईगंज